Good morning, students. Today we will start with exercise 2.2. Total, I think, five problems are there in this exercise. All problems are relatively very easy, and we can do this. You can also do this. I can also do this. Together, also we can do this. So my suggestion is to you is कि जैसे जैसे मैं करता जाता हूँ वैसे वैसे आप भी उसको करते जाइए और उसके बाद उसको रिवाइज करिए ताकि उसको आसानी से आप पचा सके डाइजेस्ट कर सके. So we will start with the exercise 2.2. Problem number 1. Find the value of the polynomial. जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढिए. उसकी वैल्यू ढूंढिए कहाँ कहाँ पे. x इज इक्वल टू 0 पे ढूंढिए, x इज इक्वल टू -1 पे ढूंढिए और x इज इक्वल टू 2 पे ढूंढिए. So before starting for a solution, what I am doing, I am writing the polynomial again. So polynomial with variable x is equal to 5x minus 4x square plus 3. 5x minus 4x square plus 3. आप में से कुछ बोलेंगे सर यहाँ पे x के ऊपर छोटा नंबर है, यहाँ पे x के ऊपर बड़ा नंबर है, यहाँ पे x के बीच ये थोड़ा एक लाइन में नहीं है, चलेगा क्या? चलेगा, कोई इश्यू नहीं है. So initially for first problem we have to put x is equal to 0. So in place of x put 0. So p of 0 is equal to 5. In place of x you have to put 0 minus 4. In place of x you have to put 0 to the whole square plus 3. Yes or no? Yes. 5 into 0, that is 0, minus 4 into 0 square. 0 square is also 0 and 0 into 4 is 0 plus 3. 0 minus 0 doesn't make any difference. So there is plus 3. So can I write p of 0, we are getting solution of a polynomial as 3. उसका मतलब है x की जगह पे जब हम 0 रखते हैं तो पूरे polynomial का solution 3 आएगा. Yes or no? Yes. So first x is equal to 0 is been completed. Now we will move ahead. So second is x is equal to -1 we have to put. So in place of x we have to put -1. So polynomial in place of x -1 we have to put is equal to 5. In place of x put -1 minus 4. In place of x put -1 to the whole square plus 3. Yes or no? Yes. So 5 ones are 5 plus into minus. लास्ट ऑनलाइन सेशन में हमने वो रूल जो मल्टीप्लिकेशन के रूल थे वही प्लस इंटू माइनस, दोनों ऑपोजिट साइन है, अलग अलग साइन है तो ऑब्वियसली माइनस आ ही जाना. सो इट इज -5 -4 और ब्रैकेट में -1 स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू -1 लिख सकते हैं या नहीं? यस. सो प्लस 3. तो माइनस इंटू माइनस सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो -5 एज इट इज, इसको तो मैंने ऐसे ही लिख लिया. -4 भी उसको ऐसे ही लिख लिया. माइनस इंटू माइनस दैट इज +1, तो हम क्या लिखेंगे, +1 प्लस 3. यस और नो? यस. -5 फिर से उसको ले लो नीचे, माइनस इंटू प्लस, दोनों ऑपोजिट साइन है तो माइनस आ जाएगा. सो -4, 4 1 का 4 ही होगा और प्लस माइनस प्लस 3. ये माइनस वाले एक ही साइड है, प्लस वाला एक ही साइड है, तो माइनस वाले को सॉल्यूशन कर लेते हैं. -5 -4 दैट इज -9 प्लस 3. अभी यहाँ पे प्लस माइनस मत करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन है. सो -9 प्लस 3 you easily know that is -6. So polynomial at -1 की वैल्यू आ जाएगी -6 और ये हो जाएगा आपका आंसर. इजी? हाँ इजी. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं
थर्ड के लिए विच इज x इज इक्वल टू 2. सेम ही चीज, सिर्फ x की जगह पे हमें रख देना है 2 को. So in place of x we will put 2 over there for a solution. So p in place of x we are putting 2, 5 in place of x we are putting 2, minus 4 in place of x we are putting 2 to the whole square plus 3 as it is, because 3 के बाद तो कुछ है ही नहीं. 5 into 2 that is 10, minus 4 as it is मैंने नीचे लिख लिया. 2 square 2 into 2 that is 4 plus 3, 10 as it is 4 into 4 यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, साइन तो माइनस हो गया, डिसाइड हो गया. 4 4 जा 16 प्लस 6, यहाँ पे 10 प्लस है और 3 प्लस है तो इन दोनों को साथ में ले. सो कैन आई राइट 10 प्लस 3 दैट इज 13 minus 16. So 13 minus 16 is what? Minus 3. Yes or no? Yes. So polynomial at 2, polynomial जब 2 रखेंगे तब आंसर आ जाएगा -3. That is our answer. I think problem first is easy. आप आसानी से कर सकते हो. So moving for a problem number 2. Welcome back. Now we are going to solve problem number 2. What it says, find p of 0, p of 1, p of 2 for each of the following polynomial. ये देखो एक ही चीज को उन्होंने घुमा के बोला है. That's it. कुछ नहीं करना है. ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसकी वैल्यू 0, 1 और 2 के लिए निकालनी है. पर इनका प्रेजेंटेशन देख के आपको थोड़ा डर लग जाएगा कि ये नया वाला प्रॉब्लम है. बाकी प्रॉब्लम सेम ही है जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया, बस इन्होंने बस इनको थोड़ा सा डेकोरेट करके दिया है. p of 0, p of 1 एंड p of 2. दैट मीन्स व्हाट? x की जगह पे 0, 1 और 2 रख के इन सारे पॉलिनोमियल्स के आंसर निकालिए. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉलिनोमियल विच इज p of y. p of y is equal to y square minus y plus 1. y square minus y plus 1. तो ये काफी इजी है. हमें सबसे पहले 0, 1 और 2, 0, 1, 2 तीन वैल्यूज के लिए चेक करना है. तो इनिशियली p of 0, y की जगह पे 0 रख देना है. सो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. सो 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 0 प्लस 1. तो ये क्या आ गया? 1. सो p of 0 इज इक्वल टू 1. सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे पास आ गया. नाउ इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट 1. 0, 1 और 2 तीनों के वैल्यू निकालनी है. सो इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट 1. तो इसी चीज में p of 1 में इसको फिर से नहीं लिख रहा, इसमें आपको लिखना है, ये फिर से ऊपर लिखना है और उसके बाद p of y की जगह पे p of 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. अभी -1 और +1 तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस विल बी 0. सो कैन आई राइट p of 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर मतलब 1 into 1, so that is 1. So can I write p of 1 is equal to 1. So 1 की वैल्यू भी आ गई. Now going for a p of 2. So again p of 2, if I place in place of y, I have to put 2. So in place of y square is equal to 2 square minus y, that means minus 2 plus 1 plus 1. So 2 square is nothing but 2 into 2, that is 4, minus 2 plus 1. ये प्लस वाले हैं उनको साथ में ले लो. प्लस 4 प्लस 1 that is plus 5. So 5 minus 2. 5 minus 2 is equal to 3. So can I write p of 2 is equal to 3. तो ये तीनों आंसर हमारे आ गए.
P of 0 we have obtained, P of 1 we have obtained, P of 2 we have obtained, and solution for this first polynomial is been over. पहले polynomial की तीनों वैल्यू हमने निकाल ली. Now moving for a second, P of t. यहाँ पे वेरिएबल वो लोग बदलते रहेंगे A B C D X Y Z, बट प्रोसीजर सेम टू सेम है, तो डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, और जीत के आगे क्या है? जीत के आगे सक्सेस है, सक्सेस के आगे क्या है? सक्सेस के आगे हैप्पीनेस है, खुशी है, सब कुछ मिल जाएगा. ये सुनो, हाँ, तो एक के बाद एक उसको करते जाना है. मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड प्रॉब्लम दैट इज P of t. तो क्वेश्चन को सबसे पहले रिपीट कर लो. P of t इज इक्वल टू 2 plus t plus 2t square minus 3q. 2 plus t plus 2t square minus t cube. Yes or no? Yes. अभी t की जगह पे 0, 1 और 2 एक के बाद एक हम रखते जाएंगे. सो P of 0 इज इक्वल टू 2 प्लस t की जगह पे 0 प्लस 2 t की जगह पे 0 स्क्वायर माइनस t की जगह पे 0 क्यूब. तो यहाँ पे 2 प्लस 0 प्लस 0 स्क्वायर इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, माइनस 0 क्यूब इज 0. तो ये 0 0 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2. सो P of 0 इज इक्वल टू 2. यस और नो? यस. तो पहला प्रॉब्लम हमने कर लिया. अभी इन प्लेस ऑफ 0 वी हैव टू पुट 1. तो ये प्रॉब्लम आप कॉपी कर लीजिए और उसके बाद 1 रख के करिए. देखो, आपको जब प्रॉब्लम कॉपी करना हो ना, तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए और लिख लीजिए, बाद में वीडियो फिर से प्ले कर दीजिए. तो वो क्या सूटेबल रहेगा, क्योंकि मैं पूरा बोर्ड तो दिखाई देता हूं आपको. पॉज कर दिया तो पूरा आप लिख पाओगे. So now in place of t we have to put 1. So P of 1 that is equal to 2, t की जगह पे 1 plus 1 plus 2 t की जगह पे 1 square minus t की जगह पे 1 cube. Yes or no? Yes. 2 plus 1 plus 2, 1 square is 1 minus 1 cube is also 1. एक को कितनी भी बार मल्टीपल करो एक से, वो एक ही रहेगा. तो एक के ऊपर 1000 भी हो फिर भी वो एक ही रहेगा. सो दैट इज 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है ना, तो साइन चेंज नहीं होगी. प्लस माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, और 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4. सो P of 1 इज इक्वल टू 4. आई थिंक ये प्रॉब्लम भी इजी है. चलिए, इन प्लेस ऑफ 1 नाउ वी हैव टू पुट 2. इन प्लेस ऑफ 1 नाउ वी विल पुट 2. नाउ P of 2 इज इक्वल टू 2 प्लस t की जगह पे 2 प्लस 2 t की जगह पे 2 टू द होल स्क्वायर माइनस 2 टू द होल क्यूब. t जहाँ पे जहाँ वहां पे हमने 2 रख दिए. 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8. तो यहाँ पे आ गया 8. सो हियर 2 प्लस 2 प्लस 2 4s आर 8 माइनस 8. यस और नो? तो ये प्लस 8 और माइनस 8 एक दूसरे को काट देंगे. सो हियर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. तो P of 2 इज इक्वल टू 4. आप बोलोगे सर अभी P of 1 में भी 4 आया था और P of 2 में भी 4 आया. अब P of 3 में चेक करके देख लीजिए सही में आ रहा है या नहीं, और मुझे बताइए. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वैल्यूज अलग ही आए, वैल्यू सेम भी आ सकती है. So now we are moving for third polynomial P of x is equal to x cube. इसको आप कॉपी कर लीजिए.
और हम बढ़ते हैं तीसरे वेरिएबल की ओर। प्रॉब्लम छोटे छोटे और आसान है, आप खुद कर सकते हो, पर मुझे पता है कि आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स हो, सभी के सभी इतने मेहनती हो कि आप खुद से नहीं करोगे। सर आप करवाओ, हमें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करना आता है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड पॉलिनोमियल दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले p ऑफ 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0 टू द होल क्यूब, तो ये तो आ गया 0। नाउ इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब, so 1 into 1 into 1 that is 1. Now p of 2 that is 2 cube, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, आ गया 8। तो ये तो बहुत तेजी से हो गया। Now moving for a last polynomial, fourth polynomial. फोर्थ पॉलिनोमियल है p ऑफ x, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। इन लोगों ने भी थोड़ा सा खेल दिया, उनको पता चल गया कि अब तो बच्चों को आसान लगने लगे होंगे प्रॉब्लम, चलिए उंगली करते हैं, तो इन्होंने उंगली कर दी। तो इसके लिए आपको पता है इट इज अ फॉर्म ऑफ a माइनस बी और a प्लस बी। अगर आपको याद हो a माइनस बी और a प्लस बी, 8th स्टैंडर्ड में आपको एक आइडेंटिटी आती थी, और इसको खोलने के बाद आपको आंसर आता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस और नो? यस। So in place of a we do have x, in place of b we do have 1. So x minus 1 and x plus 1 can we write as a x square minus 1, क्योंकि x square minus 1 square, चलिए उसको एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, x square minus 1 square, तो x square तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, minus 1 square is 1 because 1 into 1 is 1. So can I write in place of this, इसकी जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1? यस और नो? तो चलिए पॉलिनोमियल तो हमारा तैयार हो गया, अभी 0 1 और 2 रख के देखते हैं। सो पॉलिनोमियल इन प्लेस ऑफ x 0, so that is 0 square minus 1, 0 square is 0, that is minus 1, तो पहले का आंसर आ गया minus 1। Polynomial in place of x we do have 1, so here 1 square minus 1, so that is 1 minus 1, so that is 0. ये 0. In place of 1 we have to put 2, so can we write x square, that is 2 square minus 1, 2 square is 4 minus 1, so that is equal to done. तो प्रॉब्लम नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4 वी विल सॉल्व नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए, आर.डी. शर्मा को भी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि आर.डी. शर्मा ना आपको 10th में बहुत मदद करेगा। आर.डी. शर्मा में एक ही टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो एक कर लिया ना तो दूसरा उसके जैसा ही है, तीसरा उसके जैसा ही, तो वैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगी। सो टिल देन रिवाइज वेल और थैंक यू सो मच।